This is chapter number. Last we already have studied the chapter number 8, cell. Right? Classification we have done the different component cells by which the cells are made up of. The cell membrane boundaries. Second was cytoplasma. Third was cell organelles. Like cell organelles में हम पढ़ चुके हैं. ऐसे cell organelles जिन पे किसी तरह की membrane नहीं होती, membraneless, like ribosome and centrioles, right? Nucleolus. These are the different three. And single membranes, Golgi apparatus, vacuole, lysosomes, and endoplasmic reticulum. Double membrane cell organelles, well bounded. Double membranes are plastid, nucleus, and mitochondria, right? First we have done cell membrane. वापस से देखें अपन. Cell membrane according Nicholson and fluid mosaic given by the Singer and Nicholson, according we can see the cell membrane is made up of different three layers, P, L, L, P. This is single layer, this is double, this is triple. So this single layer हो गया. In between the lipid layer, this is lipid bilayer. This is lipid bilayer. प्रोटीन बाहर की तरफ, प्रोटीन अंदर की तरफ. दिस इज outer layer of the protein, outer layer of the protein. This is inner layer of the protein, right? Except of these, some of proteins can penetrate from outer to inside. That make the protein channels. कुछ इस तरह की प्रोटीन्स भी होती है जो आउटर लेयर तक लिमिटेड नहीं रहती है, इनर लेयर तक लिमिटेड रहती है. दे just arrested in a cross form हो सकती है, making a protein channel. Such a kind of the proteins called incentric proteins. Incentric proteins. So incentric proteins are involved to make the protein channels, and protein channels are the specific sites where from the particular organelles, the particular types of substances like water, oxygen, minerals, substances, ions that can transport from one side of the cell membrane to the another side. Cell membrane के एक साइड से दूसरी साइड पर इन तरह के सेल जितने भी पार्टिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, आयंस हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनको कैरी किया जा सकता है प्रोटीन चैनल्स के थ्रू. Membrane transportation. What is membrane transportation? Transportation is a mechanism by which the different chemical substances like oxygen, carbon dioxide, minerals, ions, and also water, right? They can pass from the one portion of the cell membrane to the another portion of the cell membrane. Across the cell membrane के अंदर से ये substances मूव कर सकते हैं. यदि किसी भी इस तरह के मूवमेंट के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, without any energy, that called passive transportation. If energy required, that called active transportation. Passive transportation का एग्जाम्पल हो गया, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, डिफ्यूजन. The movement of chemical substances from their high concentration to the region where they are in a lower concentration. High concentration से lower concentration की तरफ ये जो मूवमेंट हो रहा है, that movement called concentration gradient. According to concentration gradient, any energy or no any kind of energy required here, so such kind of transportation called passive transportation, right? But in a form of, जब भी कभी इस तरह के chemical substances जो बेसिकली बहुत कम अमाउंट में हो और उसको उस तरफ से खींचना हो जहां से उसका अमाउंट ज्यादा ना हो, तो ऐसी पोजीशन के अंदर वो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, और लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन करने पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. सच काइंड ऑफ द एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस दैट कॉल्ड ऑस्मोसिस. Osmosis require energy. So osmosis is a process by which we can transport the chemical substances just opposite to their concentration gradient. Concentration gradient के just opposite खींचना पड़ेगा उनको, opposite to concentration gradient.
जब भी सेल के बाहर की तरफ कोई केमिकल सब्सटेंसेस बहुत कम है बट इंपॉर्टेंट है, ऐसी पोजीशन में सेल के अंदर की तरफ उसको किस ट्रांसपोर्टेशन मेथड के थ्रू लिया जा सकता है? दैट कॉल ऑस्मोसिस. सच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉल एक्टिव ट्रांसपोर्ट. दिस इज रिजिड, permeable, hard, boundaries of the plant cells. A, इसके फंक्शंस क्या हो गए? शेप एंड साइज. Second function is protection. Third, the cell wall also allowed for the transportation. That transportation called diffusion. That called diffusion. Right? तो सेल वॉल के यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो एक सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से हो सकता है? प्लांट सेल्स और एनिमल्स, प्लांट सेल्स की बात कर रहे हैं अपन, एनिमल सेल की बात ही नहीं करेंगे यहाँ पर. नियर बाय दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शन रहता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू रहता है. दीज आर द प्रोसेस विच आर मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के प्रोसेस होते हैं. सेल वॉल की लेयर्स की बात करें तो सेल वॉल की 3 लेयर्स बनी होती हैं. फर्स्ट लेयर, this is called second layer and this is called third layer. ठीक है, हम यहीं से सेक्शन ले रहे हैं. सबसे पहले इस जगह की बात करें, this is called first layer, middle lamella, which is made up of calcium and magnesium pactate. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट. फर्स्ट लेयर जो सेल वॉल की होती है वो लिविंग होती है, सेलुलोज की बनी हुई. दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल. थिकनिंग बढ़ती है इसकी, सेकेंड वॉल बनती. This is called secondary wall. और थिकनिंग बढ़ती है इसके अंदर, टर्सरी वॉल बनती. जैसे जैसे सेल पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे सेल वॉल की थिकनिंग भी बढ़ती जाएगी, मोटाई भी बढ़ती जाएगी. प्राइमरी वॉल जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? प्राइमरी वॉल जो बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज प्लस पैक्टीन की. मोस्ट ऑफ जिन सेल के अंदर सेलुलोज और पैक्टीन की प्राइमरी वॉल होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर प्राइमरी वॉल ही होती है और वो प्राइमरी वॉल सेलुलोज और पैक्टीन की बनी होती है. यहां तक सेल वॉल है वो फ्लेक्सिबल रहती है, रिजिड नहीं रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है, फ्रेश रहती है और लिविंग रहती है. जैसे जैसे उसमें उस सेल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स बनते चले जाएंगे वैसे वैसे बाहर की तरफ उनका सेडिमेंटेशन होता चला जाएगा, थिकनिंग होती जाएगी. राइट, द ग्रोथ ऑफ सेल वॉल कॉल्ड थिकनिंग. सेल वॉल जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसमें बनी होती है वो हेमीसेलुलोज की. और टर्सरी वॉल जो होती है वो बनी होती है लिग्निन, सुबेरिन, इटीसी. जब भी किसी सेल के अंदर टर्सरी वॉल बनना चालू हो जाए तो ये डेफिनेटली मान के चलें कि वो सेल धीरे धीरे परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो चुकी है. इसका मतलब वह प्लांट सेल्स में नई सेल कहीं से नहीं आएगी. प्लांट सेल्स के ग्रोइंग रीजन्स होते हैं, उन ग्रोइंग रीजन्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम होता है सेल डिवीजन करना. जैसे जैसे सेल पुरानी होती जाएगी उसमें सेल वॉल की थिकनिंग बढ़ती चली जाएगी. सेल वॉल की थिकनिंग बढ़ने से बाकी सारी सेल्स के अंदर से उसका कनेक्शन कट हो जाएगा. धीरे धीरे वो मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट टिश्यूज की तरह कन्वर्ट हो जाएगी. उनका स्पेशलाइज्ड फंक्शन हो जाएगा सेल डिवीजन के अलावा, जैसे फोटोसिंथेसिस करना,
फूड स्टोर करना या फिर फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ये जब और ज्यादा मोटी टर्सरी सेल वॉल आ जाती तो उसके बाद वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम में कन्वर्ट होना चालू जाता है। इसका मतलब हुआ कि जाइलम और फ्लोएम यदि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो कभी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहे होंगे, तो इस हिसाब से इनकी सेल वॉल मोटी होती चली जाती है। इसका मतलब फाइनली यदि टर्सरी वॉल किसी भी सेल मेम्ब्रेन में आ चुकी है तो धीरे धीरे वो जाते जाते कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में कन्वर्ट हो चुकी होती है, राइट। अब एक बात का ध्यान रखना, यहां पर ये एक प्लांट सेल्स है। प्लांट सेल्स जब सेल डिवीजन करती है तो इसके दो न्यूक्लियस बन जाते हैं इसके अंदर। अब दो न्यूक्लियस बनने के बाद में, इन दोनों न्यूक्लियस को बनने के बाद में बीच में क्या इकट्ठा होने लग जाता है, केमिकल इकट्ठे होने लग जाते हैं, केमिकल इस तरह से। ये जो केमिकल इकट्ठे हुए हैं वो होते हैं मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला और मिडिल लैमेली। इसका मतलब यहां पर बीच में क्या इकट्ठा हो रहा है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट जो बन रहा है वो जमाव तो हो रहा है सेंटर में, बट उसका जो एनलार्जमेंट हो रहा है वो पेरिफेरियल हो रहा है, यानी कि साइड में हो रहा है। इस तरह से देखने पर पता चल रहा है यहां पर कि बीच में एक वॉल बन गई। जो वॉल यहां पर बनी है दैट्स कॉल्ड मिडिल लैमेला, और इस मिडिल लैमेला के इस तरफ भी क्या बनने लग जाएगा, इस तरफ है वो प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल, फिर टर्सरी वॉल बनना चालू हो जाएगी। इस सेल के अंदर भी मिडिल लैमेला के इस तरफ प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्सरी वॉल बनना चालू हो जाएगी। इस तरह से यदि हम बात करें कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल बनने का सबसे पहला फाउंडेशन होता है तो कौन सा होता है, मिडिल लैमेला, राइट। जब भी दो सेल वॉल आपस में कनेक्ट रहती है तो सेल वॉल के टाइम में बीच में कुछ गैप रह जाता है, पोर्स रह जाते हैं। उन पोर्स के थ्रू जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा कनेक्टेड रहते हैं। जितनी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनके सभी सेल्स में प्लाज्मोडेस्मेटा आपस में नियर बाय कनेक्शन बना के रखते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। सो प्लाज्मोडेस्मेटा सेल वॉल के अंदर से क्रॉसली होते हैं, बट दे आर ओरिजिनेटेड बेसिकली फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मोडेस्मेटा सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, बट उनको आने के लिए जगह कौन देता है, सेल वॉल देती है। इज दैट एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क। Is that any question? Please ask. So, cell wall perform for following functions: give shape and size to the cells, protect the cells, help to cell the interactions करवा रहे हैं, provide barriers to undesirable macromolecules। इन सभी चीजों को यहां पर देखा जा सकता है। यहां पर हम permeability क्या है वो देख लें। permeability, rate of transportation of chemical substances across membrane और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर से ट्रांसपोर्टेशन होने वाले केमिकल सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन की रेट को हम परमिएबिलिटी कहते हैं। जो अलाउ ना करें, जिस तरह से हम बात करें 0 रेट या 100% रेट या सेलेक्टेड रेट, इस हिसाब से मेम्ब्रेन और वॉल के अलग अलग टाइप हो जाते हैं। सबसे पहले जो 0 परमिएबिलिटी रखता है उसको कहते हैं इम्परमिएबिलिटी। मतलब जितनी भी सेल वॉल, जो पुरानी सेल वॉल होती हैं वो कभी भी किसी केमिकल सब्सटेंसेस को आने के लिए अलाउ नहीं करती। 100% जो फ्रेश सेल वॉल होती है वो ऑलवेज अलाउ करती है, परमिएबल। सेलेक्टिव रेट, सेल मेम्ब्रेन सबको अलाउ नहीं करती। सिलेक्टेड पार्टिकल्स, मैक्रो माइक्रो साइज
या सेलेक्टिव टाइप के जो केमिकल सब्सटेंसेज उनको ही अपने अंदर से ट्रांसपोर्टेशन होने देती है, दैट्स कॉल्ड सेमी परमिएबिलिटी, सेमी परमिएबिलिटी। तो इस तरह से सेलेक्टिव रेट किसकी होती है? सेल मेम्ब्रेन की। इसके अंदर क्या होगी? ओल्ड सेल वॉल की। और इसके अंदर इसके अंदर हो गया फ्रेश सेल वॉल, और इम्परमिएबल में हो गए ओल्ड सेल वॉल। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, वी आर टेकिंग सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर एक नहीं 4 ऑर्गन्स एक साथ में आकर के कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? जो चारों कॉम्बो की फॉर्म में किसी भी प्लांट सेल से किसी भी एनिमल सेल के अंदर जॉइंटली वर्क कर रहे हैं। दैट्स व्हाई टेकिंग इन अ कॉम्बो फॉर्म, these are the endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes and vacuole, lysosomes and vacuole, lysosomes and vacuole। ठीक है, ये सेल ऑर्गेनल्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर डिफरेंट 2 टाइप्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, right? Lysosomes are the specific types of cells which are bags like structure which are filled with the hydrolytic enzymes। ये हो गया आपका सिंगल मेम्ब्रेन, these are hydrolytic enzyme। Vacuoles are also bag-like structures, empty portion of these structures well bounded by tonoplast, एक मेम्ब्रेन के थ्रू ये कवर रहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड सिंगल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं सेल सैप, सेल सैप। गोल्जी एपेटस की बात करें तो गोल्जी एपेटस न्यूक्लियस के ठीक पास में होता है। ध्यान रखना, न्यूक्लियस के ठीक पास में कैसे होगा? ये स्ट्रक्चर्स देखा जाए तो इस तरह से स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना होता है, ट्यूबुलाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के ठीक पास में होता है क्योंकि इनका सेक्रेशंस का सीधा कंट्रोल किससे होता है? न्यूक्लियस से होता है। Golgi apparatus are the sites of secretion और absorption। secretions और absorptions का स्पेसिफिक टाइप्स के पार्ट्स होते हैं। कैमेलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था नर्व सेल्स ऑफ ओवल्स में। बेसिकली इसके अंदर जो फेजेस होती हैं वो फेजेस, एक होती है कॉन्वेक्स सरफेस और दूसरी होती है कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सर्विक्स एंड कॉनकेव सरफेस, राइट। और न्यूक्लियस यहां पर होता है इस तरह। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स में 3 तरह के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नंबर 1 ट्यूबुल्स, नंबर 2 सिस्टेरनी, नंबर 3 वेसिकल्स। वेसिकल्स ये वाला इससे हैं, दैट्स कॉल्ड वेसिकल्स, वी। ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर द पैरेलल ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूबुल्स। और जिनकी ब्रांचेज होती हैं दैट्स कॉल्ड सिस्टेरनी, दिस इज कॉल्ड सिस्टेरनी, राइट। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ गोल्जी apparatus आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लाइक हॉर्मोन्स, एंजाइम्स के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लाइसोसोम के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इसके अलावा ये बेसिकली बॉडी में लिपिड सिंथेसिस और लिपिड फॉर्मेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। Golgi apparatus perform for the functions of packaging of materials to be delivered either of intracellular targets or secretes out of the cells. It is also important site of the formation of glycoproteins and glycolipids, right? Glycoproteins और glycolipids आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स हो रहे हैं सिक्रेट्स, वो गोल्जी apparatus में ही हो रहे हैं, right?
SER एंड RER, ध्यान दीजिए, ये एक सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, ये सेल की बाउंड्री है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। इसके बीच में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक स्केलेटन रहता है, इंटरसेलुलर स्केलेटन, वो इस तरह से रहता है, दैट इज एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोजेज राइबोसोम, सच काइंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका इन्वॉल्व है? राइबोसोम्स की प्रेजेंस में प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, तो दिस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन बिटवीन एक साइड ये सेल मेम्ब्रेन से और दूसरी साइड ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहती है। मतलब साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस का जो प्लाज्मा होता है उनके बीच में जो सेलुलर कॉम्बिनेशंस होता है, कोऑर्डिनेशंस होता है, वो एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ही होगा। नॉट ओनली द साइटोप्लाज्मा और प्रोटोप्लाज्मा ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर सो इंटरकनेक्टेड बिकॉज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या मौजूद है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स मौजूद है। इसके कंपोनेंट्स की बात करें, दोनों की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट्स की बात करें तो सेम कंपोनेंट्स वो के वही होते हैं जो गोल्जी एपेटस में होते हैं, बिकॉज दे आर द मोस्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, इसलिए इनके होंगे ट्यूबुल्स, सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स। ठीक है, फर्क इतना है कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स दे रहा है, बेसिकली एक तरह का टनल लाइक स्ट्रक्चर्स, एक ट्रांसपोर्टेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बॉडी के अंदर जो बेसिकली इन्वॉल्व है, किसकी वजह से है? तो ये बेसिकली यहां पर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुल स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन अ साइटोप्लाज्मा। इट इज कंटिन्यू विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द outer membrane to the nucleus. It divided intracellular space into two distinct components, lamellae and a compartment out of endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum occurring are two types, rough endoplasmic and smooth endoplasmic. Rough endoplasmic are attached with the ribosomes outer surface, smooth have not any kind of ribosomes. It is a more extensive the cell activity involved in the synthesis of secretion of proteins, but smooth are not. They are responsible for the synthesis of lipid and steroids. Like it is involved in the synthesis and secretion of proteins. It involved in the synthesis of lipid and steroid hormones. Right? तो basically एक तरह से प्रोटीन बन रही है, वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट की जा रही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर स्पेशली डिवोटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स हियर, पर स्मूथ किसका फॉर्मेशन कर रही है? वो गोल्जी एपेटस को कोऑर्डिनेट कर रही है, वो स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन्स को कर रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन करना, शेप एंड साइज मेंटेन करना, केमिकल रिएक्शंस के लिए स्पेस प्रोवाइड करना, दीज आर द बिलोंगिंग फंक्शंस रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। लाइसोसोम्स की बात करें, lysosomes are membrane bound vesicle structures formed by the process of packaging of Golgi apparatus. Golgi apparatus क्या कर रहा है? पैकेजिंग का काम कर रहा है, फॉर्मेशन का काम कर रहा है एंजाइम्स का। तो वो एंजाइम्स और फॉर्मेशन करने के बाद किसमें इकट्ठे कर दिए जाएंगे? वेसिकल्स, और वो वेसिकल्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? लाइसोसोम्स में। दे कंटेन्स नंबर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स द एंजाइम विच आर रिलेटेड टू द डाइजेशन, डाइजेशन से रिलेटेड है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करने वाले, प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले, फैट्स का डाइजेशन करने वाले, डीएनए आरएनए का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स जितने भी होते हैं वो सब लाइसोसोम्स में भरे होते हैं। द कंटेन ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लिपिड एंड कंट्रोल दे आल्सो हैविंग द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हियर, राइट? तो यहाँ पर जो एक्टिव एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक पीएच वाले होते हैं। स्पेशली लाइसोसोम का फंक्शन क्या हुआ? डाइजेशन करना, सेलुलर डाइजेशन इज द रिलेटेड टू द लाइसोसोम्स हियर। नंबर 2, क्लीनिंग ऑफ द सेल्स ऑफ द डेड और डेड पार्टिकल्स यहाँ पर रिमूव कर दी जाएंगी। old cell totally dissolved, old cell totally removed और old cell totally destroyed by dispersing of lysosomes hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzyme जो भी disperse होते हैं, एकदम से blast होता है, तो सेल के अंदर lysosomes के hydrolytic enzyme पूरी की पूरी सेल को ही destroy कर देते हैं। Such phenomenon और such lack of process of done by the lysosomes are called suicidal bags. इसलिए इसको suicidal bags के नाम से भी जाना जाएगा। Vacuoles. Vacuoles are membrane bound space in a cytoplasm. In plant cells, vacuoles bounded the 60 to 90% of the total cell volume.
Tonoplast transport a number of ions and other materials against the concentration gradient in vacuoles. वैक्यूल के बाहर की तरफ मेम्ब्रेन्स होती हैं जो बेसिकली बाहर और अंदर जाने वाले मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन पर कंट्रोल करने का काम कर रही है. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा पैरामीसा हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. आपकी बॉडी में सेल्स हैं, यदि मैं प्लांट्स करूं, आपकी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर क्या मौजूद है? वैक्यूल्स है, पर वो वैक्यूल्स बहुत छोटी है. प्लांट सेल्स की बात करूं, प्लांट सेल्स में दी ओल्ड सेल्स परमानेंट सेल्स की बात करूं, जैसे कॉलनकाइमा, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इनकी बात करूं तो मेरे वैक्यूल्स का 60 to 90% वॉल्यूम पार्ट है वो किसके थ्रू कवर्ड किया जाता है? वैक्यूल्स के थ्रू, राइट. बट यदि मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करूं तो वहां पर जो सेल में जो वैक्यूल्स होती है वो छोटी छोटी होती है, राइट. तो वैक्यूल्स जो हम बात करें यदि अमीबा की, अमीबा में एक सिंगल सेल में एक बड़ी वैक्यूल होती है, वो वाटर और डिफरेंट कंपोनेंट्स और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को कंट्रोल करने का काम कर रही है. कभी उसका वॉल्यूम कम होता है, कभी उसका वॉल्यूम बढ़ता है. दैट्स व्हाई इन अमीबा वैक्यूल्स आर आल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में यदि फूड भरा होता है तो उसे फूड वैक्यूल्स कहते हैं. एक्सक्रीटा भरा होता है उसे वेसिकल्स और रेजिड्यूल वैक्यूल्स कहते हैं.